Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So this is channel of right advice at right time, a channel of knowledge and wisdom. Now, sometimes there are some curious questions of the candidates, and we always try to answer all these questions through videos. The purpose is you should have clarity of thought, clarity in your mind, so that you can focus on studies. Sometimes you are unable to interpret the notification in right spirit. And one of these such clause is phase 3 of SBI PO. Now this time they have mentioned in phase 3 either there will be interview only of 50 marks, or there will be interview of 30 marks and group exercise of 20 marks. Now some of you have asked, sir, when there is no group exercise, why we should prepare for group discussion? From where they have inferred that there is no group exercise is surprising. Now the clause simply says SBI has an option. Either they will conduct interview only, or they will conduct interview plus group exercise. Group exercise includes group discussion. Now, why this clause is modified this time? Up to last year notification, there was only one clause, interview and group exercise. But this year, they have taken a precaution. Why? We are passing through COVID situation. In COVID situation, there may be possibility they may not be able to arrange group discussion or group chats or something like that, because interviews can be conducted virtual media platform. They can have video conference and conduct your interview, or they may call you at a isolation center and there you may be sitting and the board members may be sitting in another chamber. But in group discussion, you require people to remain seated besides each other. But that is also possible through video conferencing. So since the modalities may not be clear at this stage, what is likely to happen in the month of February, what will be the COVID situation in the month of February, whether the situation will deteriorate or improve from here, SBI has kept a cushion in the notification. They have advised the candidates that they have an option interview only or interview plus group discussion. But SBI is always inclined towards group exercise and group discussion, because this is one of the important aspects of testing few capabilities in the candidate. And SBI is very choosy. Why SBI is choosy? Because there is a craze about SBI in the banking aspirants. It is a brand name. And since people are crazy about this organization, they also have some difficult norms for selection as compared to other banks. In IBPS PO, simply they conduct interview. No group exercise, no group discussion. But SBI prefers group discussions. If you see the selection of senior officer in number of banks, group discussion is essential. When you move from scale 4 to scale 5 in some banks, the interview plus group discussion is an integral part. So merely by these words, interview only or interview and group discussion, don't fall in a trap. There will be no group exercise or group discussion. You should always prepare for the worst. Since both the options are open and suddenly you get a call letter that you have to appear for a group discussion and you are not prepared for it, how you will prepare? And that's why on this channel we always give you right advice. We prepare for more. If something less will happen, it is in our benefit. Some people say do current affair for 4 months. I always say do it for 12 months. Why? If you are reading more, it is not going to harm you.
But if you are reading less and if the question comes from more months, it will harm you a job. Mind it. It is not an academic competition. It is a competition where either you will get the job or you will get the opportunity to get the job. Lose the opportunity to get the job. So we cannot take chances. We cannot be casual that somebody simply makes a statement, only prepare for 4-month current affair. And he or she does not have any stake in your career. And when you go to the real examination, the question comes as old as February. And these people will not even say a word of sorry to you. They may advise. But once you lose the opportunity, they will not have even a word of sorry for you. Who will be loser? Are these advisors? No. You are the loser. So always, the management theory says, always prepare for worst. If something better happens, you are better placed. I am not saying that compulsorily there will be GD. No, I am not saying that. But there is a probability, and there is a strong probability, because SBI is inclined towards that. But if circumstances will not permit them, then only they will conduct interview only. Otherwise, they will conduct interview plus group exercise. I think this will clarify the things thick and thin with you, and you will now work according to that. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. ये चैनल है राइट एडवाइस एट राइट टाइम. ये चैनल है नॉलेज और विजडम का. इसमें हम जो भी आपको रास्ता दिखाते हैं वो एक सच्चाई का रास्ता है, सही रास्ता है, जिससे आपका कैरियर बने. अब कुछ कैंडिडेट्स ने आज कहा कि सर उसमें नोटिफिकेशन में तो लिखा हुआ है इंटरव्यू ओनली, तो जीडी तो होना ही नहीं है. आप कह रहे हो जीडी की तैयारी करो. आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है. वहां नोटिफिकेशन में शब्द इस्तेमाल हुआ है देयर विल बी 2 ऑप्शंस. पहली ऑप्शन स्टेट बैंक के पास है इंटरव्यू ओनली 50 नंबर. दूसरी ऑप्शन है इंटरव्यू 30, ग्रुप एक्सरसाइज 20. ग्रुप एक्सरसाइज इंक्लूड्स ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप एक्सरसाइज इज ए वाइडर टर्म. ग्रुप डिस्कशन इज वन पार्ट ऑफ इट. That means they can give you a task where group is involved, or they can involve you in a group discussion. Both are covered under group exercises. तो हमें करना क्या है और ये ऐसा क्लॉज क्यों डाला गया है, इसको समझने के लिए आप समझिए कि आप इस समय कोविड-19 की स्थिति से चल रहे हैं. कभी केसेस बढ़ रहे हैं, कभी केसेस घट रहे हैं, कभी लॉकडाउन लगने की संभावना होती है, कभी हटने की संभावना होती है. अब ये आपके इंटरव्यूज होने हैं मान लीजिए फरवरी एंड में या मार्च के अंदर. उस समय तक यदि स्थिति मान लो अच्छी नहीं रहती और वो लोगों को ग्रुप में नहीं बिठा सकते हैं, तो वो ग्रुप एक्सरसाइज रूट पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू वर्चुअल मीडिया के थ्रू किया जा सकता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया जा सकता है, जबकि ग्रुप एक्सरसाइज भी की जा सकती है वर्चुअल मीडिया के थ्रू. वो उसको करना चाहेंगे, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, ये सारी चीजें अभी ऐसी हैं जो विचारणीय है. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, दोनों ऑप्शन ओपन करके चलता है कि वर्स्ट केस आ गया तो खाली इंटरव्यू लेके प्रोसेस पूरा कर लेंगे, और नॉर्मल कंडीशंस रही तो जो उनकी मन की इच्छा है इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज कराने की वो कराएंगे. स्टेट बैंक हमेशा से ग्रुप इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज की फेवर में रहा है. आईबीपीएस में कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होती है, पर क्योंकि स्टेट बैंक की एक क्रेज है, कैंडिडेट उसमें घुसना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने आप में एक एडिशनल मोड रखा हुआ है कुछ और टैलेंट चेक करने का. हर जो स्टेप होता है वो आपका किसी एक पर्टिकुलर टैलेंट को चेक करता है. तो जो ग्रुप एक्सरसाइजेज होती हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, वो भी कैंडिडेट की सर्टेन ट्रेड्स को टेस्ट करने की एक टेक्निक है जो अदर बैंक्स नहीं करते हैं. अदर बैंक्स में ये एक्सरसाइज यूज होती है बहुत हायर लेवल पे, जब स्केल 4 से 5 में जाना है, 5 to 6 में जाना है, उससे नीचे के प्रोसेस वो इंटरव्यू में ही चला देते हैं. पर स्टेट बैंक के अंदर शुरू से कुछ यूनिकनेस होती है.
तो स्टेट बैंक ये ग्रुप डिस्कशन करा के कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स आपकी चेक करता है। तो अगर संभावना होगी कराने की तो वो जरूर कराएंगे, इसलिए हमें उसके लिए तैयार रहना है। ये जो चैनल है इस पे हम वो बात करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो की। मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट है कि अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार हैं तो बेस्ट केस में तो हम जीत ही जाएंगे, और अगर हम सिर्फ बेस्ट केस की तैयारी कर रहे हैं और वर्स्ट केस हो गया तो हम हार जाएंगे। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, कई लोग कहते हैं 4 महीने की करंट अफेयर करो, कुछ लोग कहते हैं 3 महीने की करंट अफेयर करो, मैं कहता हूं 12 महीने की करो। अब कईयों को अजीब लग सकता है 12 महीने की करो, कईयों को यह भी लगता है कैसे करें। पर जब आप एग्जाम में जाते हैं, मान लो फरवरी का क्वेश्चन आ गया इस साल, और जो 4 महीने वाले की सलाह मान के गया था वो तो फेल हो गया ना, और जो हमारी सलाह मान के गया था वो पास हो गया। तो ये 4 महीने की सलाह सही निकली या 12 महीने की सलाह सही निकली? जिसने 4 महीने की सलाह दी है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, आप सेलेक्ट हो या फेल हो उसको क्या फर्क पड़ा, वो तो सॉरी भी नहीं बोलेगा आपको। कैरियर आपका खराब हुआ, नौकरी गई, नौकरी मिलने का चांस गया आपका। उन व्यक्तियों का कुछ नहीं जाएगा जो लूज टॉक करके आपको ये चीजें सिखा रहे हैं। विजडम क्या होती है? विजडम होती है वर्ड्स के लिए तैयार रहना। विजडम होती है हर उन इवेंचुअलिटीज को ध्यान में रख के चलना जिनकी संभावनाएं होती हैं, इसे विजडम बोलते हैं। जो सब कर रहे हैं वही कोई सब बता रहे हैं, वो विजडम नहीं कहलाती। विजडम होती है कुछ अतिरिक्त सोचना। स्टेट बैंक ने अपने इस नोटिफिकेशन में कुछ अतिरिक्त डाला है, इसको सोचिए। उनकी मंशा है ग्रुप एक्सरसाइज कराने की, पर उन्होंने ऑप्शन ये भी रखी है कि अगर संभावना नहीं होगी तो एक्सरसाइज को डिले ना करें, तो खाली इंटरव्यू लेके भी काम चला दें। तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो वाला कैंडिडेट है वो क्या करेगा? वो ग्रुप डिस्कशन की भी तैयारी करेगा, और जो ये मान के चलेगा कि भाई ग्रुप डिस्कशन तो होएगी नहीं, मैं खाली इंटरव्यू की तैयारी कर लूं, और जब पास हो जाए वो मेन में अचानक उसको ग्रुप एक्सरसाइज का कॉल आ जाए, फिर क्या करेगा वो? जैसा SBI जूनियर एसोसिएट में हुआ, क्योंकि लोगों ने अपने मन में धारणा बना ली थी कि 3-4 महीने की करंट अफेयर आती है, और पुरानी आ गई तो वो एग्जामिनर को ही ब्लेम करने लगे। पर पुरानी तो आ सकती है ना, ये कहां लिखा हुआ है कि 4 ही महीने की करंट अफेयर आएगी? करंट अफेयर की डेफिनेशन ही है अप टू 12 मंथ्स। करंट होता है एनीथिंग अप टू 12 मंथ्स। अगर हम अपनी डेफिनेशन खुद ही चेंज कर लेते हैं, मान लो वाटर का फार्मूला है H2O, और हम याद कर लेते हैं HO, और फिर कहने लगते हैं कि H2O क्यों पूछ लिया, ये तो गलत बात है ना। वो कम पूछता रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि अधिक नहीं पूछ सकता। समझ रहे हैं जो मैं बात कहना चाह रहा हूं? हो सकता है पिछले सालों में वो कम पूछता रहा हो, उससे कोई अधिकार नहीं बन जाता हमारा कि अधिक नहीं पूछा जा सकता। हमें वर्ड्स के लिए तैयार रहना है। ये कॉम्पिटिटिव वर्ड है, जो दूसरों से ज्यादा तैयार है वही पास होगा, और जैसे जैसे वैकेंसियां घटेंगी कैंडिडेट बढ़ेंगे, जो ज्यादा प्रिपेयर्ड होगा वही जीतेगा, ये मान के चलिए आप। एग्जाम्पल मत लीजिए 2012, 2013, 2014 के, 2008 के, 2009 के या पिछले सालों के। डोंट टेक दोज एग्जाम्पल्स। उस समय बहुत वैकेंसीज थी, अब वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। अगर आज से 4 साल पहले भी 2000 वैकेंसी थी स्टेट बैंक के अंदर, और आज भी 2000 है, तो हम इसको बढ़ी हुई नहीं मानेंगे, इसको कम मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए, वैकेंसी 2000 है, तो कंपटीशन बढ़ गया। मतलब 100 रुपए आज से 5 साल के और 100 रुपए आज के क्या बराबर हैं? नहीं है। अगर 5 साल पहले आपके पास 100 रुपए थे, आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा थी 100 रुपए की। आज आपके पास 100 रुपए, आपकी परचेजिंग पावर कम है। तो यदि स्टेट बैंक में 5 साल पहले भी 2000 वैकेंसीज थी, आज भी 2000 वैकेंसीज हैं, संख्या सेम लग रही है, पर इसको हम कम वैकेंसी मानेंगे। इसलिए इस साल का कंपटीशन पिछले सालों के मुकाबले और कठिन होगा, ये हमें मान के
चल रहा है. God bless you all.